Dear students, today we are going to study one of the most important poems of your book, A Thing of Beauty. Many of you may have studied this poem through many other sources. As you know, nowadays we are availing a lot of sources on YouTube, and as I told you, many of you would have studied this poem as well. My perception about this poem and the perceptions which other teachers would have shared with you might be little bit different, but both the meanings would be the same. Everybody has his own way to teach something. I may differ from him, he may differ from my way of teaching. But all of us try to say the same thing. A Thing of Beauty. The poem has been written by John Keats. John Keats is called a romantic poem. Romantic, it doesn't mean that he used to write the poem based on love affair and romance, etc., etc. In those days, those poets, those authors who used to write their composition based on nature, they were also called the romantic author. John Keats is supposed to be the prince of the most valuable compositions based on nature. A Thing of Beauty is one of them. In A Thing of Beauty, the poet has very beautifully told us what does he mean when he says a thing of beauty. Everybody's perception about the beauty might be different, but here the poet's perception is completely related to nature. For some persons, his mother would be beautiful. For some persons, his beloved would be very beautiful. For some other persons, different other things would be very beautiful. But here the poet is not talking about any physical things. The poet is not talking about a girl. Poet is not talking about a mother. Poet is not talking about any other thing. His ultimate target is to tell us the beauty of nature and tell us the importance of those beauties. Before I make you understand the poem line by line, I would like to have a summary so that you can understand the complete poem. The poet says that a thing of beauty never passes into nothingness. कवि कहते हैं कि एक जो रियल सुंदरता की वस्तु होती है, जो मैटेरियल सुंदरता होती है, कार है या और मकान है, ये सारी चीजें आज हैं, कल नहीं रहेंगी, लेकिन जो प्रकृति की सुंदरता है वो कभी खत्म नहीं होती, वो आगे बढ़ती ही जाती है। ऐसी सुंदरता हमें परमानेंट सुकून देती है, राहत देती है बहुत। कवि ने कहा कि पेड़ की छाया की तरह, जैसे ग्रीष्म ऋतु में हमारे संस्कृत में माना गया है कि भोजन में खीर और शरद ऋतु में आग और ग्रीष्म ऋतु में वृक्ष की छाया स्वर्ग का संदेश देती है।
तो ठीक उसी तरह प्रकृति भी हमें स्वर्ग का एहसास कराती है। कभी कहते हैं कि हमें सुकून देती है, स्वास्थ्य देती है, अच्छी नींद देती है, हमारे जीवन के अंधियारे को दूर करती है, हमारे अंदर के दुष्विचारों को दूर करती है, हमारे अंदर की निराशा को दूर करती है। कवि ने कई ऐसी चीजों के नाम गिनाए हैं जिसको कि आप अनिद्य सुंदर कह सकते हो, जिसकी कहीं किसी चीज से तुलना नहीं की जाए, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो चांद हो, छोटे मोटे पौधे हों, अंकुरित होने वाले पौधे हों, बूढ़े पेड़ हों, सबको। और परमपिता परमेश्वर इतने दयालु हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने सब के लिए एक मासूम सा भेड़ के लिए भी छाया बना रखी है ताकि उसे सुकून मिल सके। यानी आप हम अगर उसे सुकून नहीं दे सकते तो प्रकृति ने उसके लिए व्यवस्था कर रखी है। परमपिता परमेश्वर ने उन सभी निरीह प्राणियों के लिए भी बहुत कुछ किया है। कभी कहते हैं क्या कि हम लोगों ने पूर्वजों के लिए अपने, चाहे अब जैसे हमारे महान पूर्वज महाराणा प्रताप हों, भगत सिंह हों, शिवाजी महाराज हों, लक्ष्मीबाई हों, इन सब के बारे में बहुत सारी कल्पनाएं कर रखी हैं कि वो ऐसे थे, वैसे थे, महान थे, ऐसे थे, वो स्वर्ग में रहते होंगे। कभी कहने का मतलब है कि उन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो हम भी देख सकते हैं, महसूस करते हैं, अगर हम अपने को जोड़ सकें किससे। इफ वी कैन रिलेट आवरसेल्फ टू अवर मदर नेचर, वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर मदर नेचर, टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, टू एंजॉय द हेवन। अवर अर्थ itself is a heaven. What we have transformed this heaven into hell due to our evil activities. कभी कहते हैं कि ऐसा नहीं कि हमारी पृथ्वी स्वर्ग नहीं है, प्रकृति जहां है वहीं स्वर्ग है। हमने प्रकृति को विनाश कर दिया है और एक अलग ही स्वर्ग की कल्पना करते हैं। हमारे पूर्वज किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां आनंद ही आनंद, शकून ही शकून। वास्तविक रूप से देखा जाए वो सारे शकून हम जिंदा रहते हुए भी भोग सकते हैं। और वो कब भोग सकते हैं? जब हम ज्यादा से ज्यादा वक्त किसके बीच में बिताएं? प्रकृति के बीच में। अ थिंग ऑफ ब्यूटी यही है, और कुछ इससे ज्यादा कुछ है नहीं। हम लोग इसको लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये पोएम। कवि कहते हैं A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. सुंदरता की वस्तु हमेशा की खुशी है। इसकी सुंदरता, इसकी खूबसूरती बढ़ती ही जाती है, खत्म नहीं होती। It will never pass into nothingness. यह कभी भी शून्य में नहीं जाती है, यानी यह कभी खत्म नहीं होती है। But will keep a bath quite for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. ये जो है ये सुंदरता की वस्तुएं। अब आप यहाँ दो अर्थ निकाल सकते हो। बार मतलब तो पेड़ की छाया है, दूसरा अर्थ है मानसिक सुकून, मन के अंदर जो छाया है, मन की जो सुकून है। प्रकृति हमें मन की सुकून देती है, एक खूबसूरत सा प्यारा सा नींद देती है जिसमें एकदम अच्छे अच्छे सपने आते हों, और क्या अच्छा स्वास्थ्य रहता है, और हमारी जो नींद होती है, हमारी जो सांसें होती है वो खामोश होती है। आपकी खामोश सांसें आपके अच्छे स्वास्थ्य की निशानी होती है। आपने किसी छोटे बच्चे को देखा होगा, आप उनके नाक के पास उंगली रखोगे तब एहसास होगा कि वो बच्चा सांस ले रहा है। ऐसे सांस को निर्दोष सांस कहते हैं, एकदम स्वस्थ सांस कहते हैं। और आप और हम में से बहुत सारे लोग कैसी सांसें लेते हैं ये तो मालूम है कि अगर बगल वाले कमरे में कोई सोया हुआ है तो दूसरे कमरे का आदमी जग जाए, हाँ ऐसा लगे कि दूसरे कमरे में तूफान आया हुआ है, इतनी भयानक खर्राटा कई लोग लेते हैं। तो ये एक स्वस्थ सांस की निशानी नहीं है। तो आप जितना ज्यादा प्रकृति और प्राकृतिक तरीके से जीते हो जिंदगी को, उतना ही स्वस्थ रहते हो, और जितना ही स्वस्थ रहते हो आपकी सांस उतनी अच्छी आती है, आपकी नींद उतनी अच्छी आती है। आगे वो कहते हैं, Therefore, on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth. इसलिए प्रत्येक कल को, मैंने बोर्ड पर
कीवर्ड्स लिखे हुए हैं ताकि आपको मदद हो सके समझने में चीजों को। तो हम लोग प्रत्येक कल को एक नए नए फूल की मालाएं गूंथते हैं। हिंदू मैथोलॉजी में आपने देखा होगा, लोग प्रतिदिन पूजा करते हैं और माला गूंथ करके भगवान को चढ़ाते हैं। यानी कि जिसे आप परमेश्वर मानते हो उसको किससे जोड़ते हो? प्रकृति से जोड़ते हो। यानी आप ये स्वीकार करते हो कि प्रकृति में ही परमेश्वर है। तो हर एक दिन हम नए नए माला बुनते हैं और पृथ्वी से अपने आप को जोड़े रखते हैं। स्पाइट ऑफ रेस्पोंडेंस, इन स्पाइट ऑफ फ्रेज है जिसकी हिंदी होती है के बावजूद, लाख निराशाओं के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। इनह्यूमन मतलब अमानवीय, अमानवीय चीजों के साथ साथ, निराशाओं के साथ साथ, पवित्र नोबल नेचर्स मतलब पवित्र गुणों के अभाव में, डर्थ मतलब अभाव होता है। शायद मैंने बोर्ड पर लिखना मैं भूल गया हूं, इसको मैं लिख रहा हूं, आप देख लोगे। तो अभाव होता है, तो जो मानवीय गुण है उसका अभाव है। अभी के समय में क्या है? निराशा छाई हुई है, लोगों में मानवीयता का अभाव है, सब कुछ है। इसके बावजूद और हमारे अंदर बहुत सारी गंदी गंदी विचार आ गए हैं, सबके बावजूद भी एक जो सुंदरता की वस्तु है वह इस दुनिया को स्वर्ग बना करके रखती है। इतना तो आप मानोगे। कई बूढ़े बुजुर्गों को आपने कहते हुए सुना होगा, अब तो दुनिया बेकार है, तो फालतू हो गई दुनिया, ऐसे बूढ़े लोग कहते हैं। अब तो रहने लगे। एक हम लोगों के समय की दुनिया थी, बाप रे बाप, लोगों में कितना भाईचारा था, पराये भी अपने जैसे लगते थे। अब तो अपने भी पराये हो गए हैं, ना कोई प्रेम है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे लोग पहले भी थे, बुरे लोग पहले भी थे, वही अच्छे बुरे लोग अभी भी है। व्यवस्थाएं बदल रही है, विचार अपने अपने जगह पर सबका है ही वही है, उसमें कोई खास फर्क नहीं। हमारा पृथ्वी के प्रति मोह जो है वो कभी टूटता नहीं। अगर वही बूढ़े आदमी को आप कहोगे कि दादाजी ये हमारी दुनिया, अभी की दुनिया बहुत गंदी हो गई, बहुत फालतू होती है, तो आप अलविदा कह लो, बाय बाय करो दुनिया को, वो आपको गाली देना शुरू कर देंगे। तुम्हारा बाप मर जाए, तुम मर जाओ, हाँ ये मर जाए, वो मर जाए। उनको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने घाव पर नमक छिड़क दिया है। तब वो उनको गुस्सा लगता है, जब इससे थोड़ी देर पहले वो ये कह रहे थे कि ये दुनिया बहुत बेकार हो गई। कवि के कहने का यही मतलब है, इतनी निराशाओं, इतनी हताशाओं के बावजूद ये दुनिया रहने लायक जगह है, स्वर्ग है। और इसको स्वर्ग क्या बनाती है? वो खूबसूरत चीजें जो हमारे प्रकृति में उपलब्ध है, मौजूद है। आगे देखते हैं वो खूबसूरत चीजें क्या क्या। सच द सन, द मून, 3 years old and young, sprouting a sad moon for simple sip। सूरज हो, चांद हो, बड़े बूढ़े जवान छोटे पेड़ पौधे हों। बून मतलब वरदान होता है। छोटे छोटे भेड़ों, निरीह भेड़ों, कमजोर लाचार भेड़ों के लिए जो भगवान ने छाया दे रखी है, उन्हें जो शकून दे रखी है वो हो। एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। यानी सूरज हुए, चांद हुए, पेड़ों की छाया हुई। डेफोडिल्स नरगिस का फूल बड़ा खूबसूरत हल्का क्रीम कलर का होता है, हल्का पीलापन लिया हुआ, बड़ा खूबसूरत होता है। हरियाली की दुनिया में वो रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स ऑफ कूलिंग कवर्ड मैक अगेंस्ट द हॉट सीजन। जंगल में बरसात के दिनों में क्या होता है कि पेड़ों के बीच से जैसे ढलान होती है तो ढलान से छोटे छोटे झरने बन जाते हैं, उससे बहते रहते हैं, उसको रिल्स कहा जाता है। तो गर्मी के दिनों में उन रिल्स के पास अगर आप देखोगे उसमें पानी जमा हुआ रहता है, ऐसा लगता है कि उसमें अगर पैर लटका करके बैठे रहोगे तो आपको लगेगा कि अगर स्वर्ग लाख एसी हो, लाख रेफ्रिजरेटर हो, इसका मुकाबला कुछ नहीं कर सकता। वो पेड़ की छाया, वृक्ष कहाँ का, जंगल का, और उसके नीचे बहने वाले वो छोटे छोटे झरने, वो आपको स्वर्ग का एहसास है। और ये सारे जो संप्रेषक है, संबोधन करते हैं किसका? खूबसूरत दुनिया का। और जिस दुनिया को हम
बिना प्रकृति के कल्पना भी नहीं कर सकते। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम। और क्या, मस्क, मस्क मतलब कस्तूरी होती है। कस्तूरी आप जानते हो हिरन के नाभि में पाया जाता है, दुनिया का सबसे खूबसूरत बहुत ही सुगंधित पदार्थ है। तो जंगली गुलाब से जो सुगंध निकलता, कभी कल्पना करोगे आप जंगल में हो, आपका पैर उस झरने में लटका हुआ, गर्मी का भयंकर प्रचंड गर्मी का मौसम हो, ऊपर से पेड़ की छाया हो, चारों तरफ से गुलाब का गंध आपके नाक में आ रहा हो, नरगिस के फूल इधर उधर खिले हुए। स्वर्ग यही है और केवल यही है। और ये कल्पना की चीजें नहीं है, ये है। लेकिन हमने क्या किया है, गंगा को नाला बना दिया है, पेड़ों को ठूठा कर दिया है, स्वर्ग को नर्क बना दिया है और एक अलग ही स्वर्ग की कल्पना करते हैं। कवि के कहने का मतलब है कि हमें अपने मौजूदा स्वर्ग को बचाए रखना, प्रकृति के बीच में रहना है जितना संभव हो सके, तो हम वाकई एहसास कर सकते हैं कि सुंदरता की वस्तु क्या होती है और कैसी होती है। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। अपने शक्तिशाली पूर्वजों के लिए हमने कल्पना कर रखी है, वो ऐसे थे वैसे थे, उनकी जिंदगी इस दुनिया से परे बहुत स्वर्ग में होती होगी। ये सारी चीजें, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, ये सारी कहानियां जिसको या तो हमने इतिहास की किताबों में पढ़ी है या दादी नानी से सुनी है, शिक्षकों से सुना है, पापा मम्मी से सुनी है। वो किसके बारे में, शिवाजी के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, भगत सिंह के बारे में, ये सारी चीजें जो है, और आप जब उनके बारे में सुनते हो तो ये तो बिल्कुल मान करके चलते हो वो स्वर्गीय ही होंगे, यानी स्वर्ग में ही निवास करते होंगे। लेकिन हकीकत ये है कि हम भी स्वर्ग में ही हैं, लेकिन हमने अपने स्वर्ग को क्या किया, नर्क बना लिया है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक pouring on to us from the heavens beneath। परम पिता परमेश्वर ने स्वर्ग से, स्वर्ग के कोने से हमारे ऊपर अमर इमॉर्टल पेय दिया है, पीने को दिया है, जिससे हम सुकून से रह सकें। और वो अमर चीजें क्या है, हमारी पृथ्वी जो आच्छादित है किससे, प्रकृति से, उसकी खूबसूरती से। तो कवि के इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि हमें जितना संभव हो सके खुद को किसके बीच में रखना चाहिए, प्रकृति के बीच में। जितना संभव हो सके प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, संवर्धन करना चाहिए, उसका विकास करना चाहिए, उसका विनाश नहीं करना चाहिए। यही थी अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अगले क्लास में हम लोग लेक्चर से अगला लेक्चर जो होगा उसमें इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग समझेंगे, सीखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें इससे उठ सकती हैं और हमें उसका जवाब कैसे देना है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।